بلوچستان کے ضلع زیارت سے ایک انتہائی افسوسناک خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کی تفصیلات بڑی حیران کن ہیں۔ صوبائی حکومت کیا کہہ رہی ہے، مقامی عینی شاہدین کیا کہہ رہے ہیں، بعض اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس کے دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر وہ حقائق اور خبریں اور معلومات کی بنا پر چیزیں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ انتہائی غیر معمولی ایک خبر ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ ایران، پاکستان اور بھارت کے ممکنہ اتحاد سے متعلق ہے۔ جی ہاں، اس سے متعلق بھی انتہائی انٹرسٹنگ جو اپڈیٹس ہیں، انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے اس ولاگ میں، تو ویڈیو کے آخر تک آپ نے ضرور رہنا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 7 جولائی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ کل ہم نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہی پیٹرن، وہی حکمت عملی، اس کے اندر آپ ایک نمایاں اضافہ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اور وہ کیا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی یا جسے ریاست پاکستان فطرت الخوارج کا نام دیتی ہے، اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر رہی ہے اور اپنا دائرہ کار وسیع کر رہی ہے اور خود کو خیبر پختونخوا کی حد تک محدود نہیں کرنا چاہتی، بلکہ بلوچستان کے ان ایریاز کے اندر بالخصوص جہاں پر پختون بڑی تعداد کے اندر آباد ہیں، وہاں پر کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جو حال ہی میں بلوچستان کے ضلع زیارت کے اندر جو کہ کوئٹہ سے 120-130 کلومیٹر دور ہے، یہاں پر ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ کیا گیا، دہشت گردانہ یہ حملہ تھا، انتہائی شدت کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا۔ صوبائی حکومت کیا کہہ رہی ہے، پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اس کو کس انداز میں رپورٹ کر رہا ہے، پہلے یہ خبر میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے اندر مزید جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈان نیوز کی خبر کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 9 پولیس اہلکار، جن میں 2 اسٹیشن ہاؤس آفیسرز یعنی کہ ایس ایچ اوز بھی شامل تھے، بلوچستان کے ضلع زیارت میں ایک پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ حکام نے منگل کے روز اس واقعے کی تصدیق کی ہے، یعنی آج کے روز۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے میڈیا اور سیاسی امور شاہد رند نے بتایا کہ حملے کے بعد شروع کیے گئے کلیئرنس آپریشن میں فطرت الخوارج یعنی کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے 15 جو افراد سے، اہلکار سے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق مسلح دہشت گردوں نے رات گئے پولیس چوکی پر حملہ کیا۔ پولیس نے کچھ دیر تک دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا، تاہم بعد ازاں حملہ آور چوکی کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زیارت کے ڈپٹی کمشنر عبدالقدوس اچکزئی نے واقعے میں 9 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ یہ حملہ منگی ڈیم کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ یہ نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ علاقہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 5 پولیس اہلکار تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ مزید نفری علاقے میں روانہ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ اہلکاروں کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ دوسری جانب شاہد رند نے بتایا کہ شہداء میں منگی اور اکاؤس تھانوں کے اسٹیشن ہاؤس افسران ایس ایچ اوز بھی شامل ہیں، جبکہ انسداد دہشت گردی فورس کے انچارج ہیڈ کانسٹیبل سیف اللہ بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہے۔ اچھا، جو بعض جو مقامی جو افراد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں اغوا کیا گیا ہے امن دشمنوں کی طرف سے پولیس اہلکاروں کو، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ پولیس 5 کا نمبر دے رہی ہے، لیکن یہ تعداد بعض ممکنہ ذرائع کے مطابق زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی جو تازہ ترین، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بتایا جا رہا ہے تقریباً پاکستان میں اس وقت 2:30 بج چکے ہیں دن کے، اور اس وقت جو تازہ ترین جو انفارمیشن ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ آ چکے ہیں، انہیں بازیاب کروایا جا چکا ہے یا وہ خود آ چکے ہیں، اس قسم کی اطلاعات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 سے زیادہ کا نمبر تھا، 7 پولیس اہلکار جو ہیں یہ آ چکے ہیں۔ اب اگر نمبر زیادہ ہے تو ظاہر ہے ریسکیو آپریشن، کلیئرنس آپریشن جاری ہے، اور کلیئرنس آپریشن کے تحت ہی 15 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا گیا ہے، یہ بھی صوبائی حکومت یا انتظامیہ کہہ رہی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کل ہم نے جو ایک تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی ہنا اوڑک سے متعلق، یہ ایک سیاحتی مقام ہے، جھیل ہے، بڑی خوبصورت قسم کی جھیل ہے۔ یہاں پر لوگ دور دراز علاقوں سے جاتے ہیں، دیگر صوبوں سے بھی یہاں پر جاتے ہیں، سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں۔ یہاں بھی امن دشمنوں یا بالخصوص کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس جھیل کے آس پاس جو آبادی والا علاقہ ہے، یہاں پر علاقہ مکینوں کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ علاقہ خالی کر دیں، اور اس کے اوپر علاقہ مکینوں نے انکار کر دیا تھا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ جرگے بھی ہوئے، اور پھر علاقہ مکینوں نے پولیس فورسز کو بتایا اور صوبائی حکومت نے اس بات کو ایشور کیا کہ آپ اپنے علاقے نہیں چھوڑیں گے، ہم ان عناصر کے ساتھ خود ہی ڈیل کریں گے، اور اس کے بعد ہنا اوڑک کے اندر جھڑپوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب یہ جو منگی ڈیم کے اندر جو واقع رونما ہوا ہے، یہ جو پولیس اسٹیشن ہے یہ اسی علاقے کی حدود میں آتا ہے۔ اب یہ منگی ڈیم جو ہے یہ بھی ایک سیاحتی علاقہ ہے، اور جونیپر درختوں، قدیم درختوں کی وجہ سے یہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ یہاں بھی بڑی دور دراز سے لوگ آتے ہیں، سیاحت کی غرض سے آتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کی معیشت ایک مضبوط ہوتی ہے،
ज़ाहिर है दूर दराज से इलाके के लोग आते हैं, यहाँ पर सियाहत करते हैं, जो मकामी सतह के ऊपर होटल्स है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, उनको फ़ायदा होता है। तो जो मकामी सनत है, ऐसा लग रहा है कि अब अमन दुश्मनों की तरफ से उसको टारगेट पर रख लिया गया है कि हमने मकामी सनत को परवान नहीं चढ़ने देना। और बिलखसूस सियाहती इलाकों के ऊपर ऐसे जो कार्रवाइयाँ हैं, इन पर अपनी शिद्दत को बढ़ाना, इट्सेल्फ ये पैगाम देना है कि अब हम ये फ़कत सियाहती मकाम की हद तक नहीं है, बल्कि हम पूरे इलाके के अंदर अपना खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं। और एक नया पैटर्न आपको बलूचिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। ये जो मंगी डैम का इलाका है, या जो ज़ियारत की बात करते हैं, चूँकि ये भी पख्तून आबादी वाला है और ज़्यादातर यहाँ पर पख्तून ही अफराद जो हमारे भाई हैं वो रहते हैं, और यहाँ पर कलअदम टीटीपी, और ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान के उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर पख्तून बड़ी तादाद के अंदर आबाद हैं, वहाँ पर अब कलअदम टीटीपी अपना दायरा कार वसी कर रही है अपनी कार्रवाइयों का, अपनी मज़मूम कार्रवाइयों का। और दीगर जहाँ पर बलोच हैं, वहाँ पर कलअदम BLA जो है ये अपनी कार्रवाइयाँ, मज़मूम कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आ रही है। तो ये बैक टू बैक दो किस्म के वाक़यात हो गए हैं, एक हन्ना ओढ़क के अंदर, और दूसरा जो वाक़या रुनुमा हुआ है ये मंगी डैम के अंदर। और ये दोनों सियाहती मकाम है, यहाँ पर अमन दुश्मनों की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं। और इसका ज़ाहिर मकसद ये है कि सियाहती इलाकों के अंदर भी ये तासुर दिया जाए कि वो गैर महफूज है, और यहाँ पर सूबाई हुकूमत रियासत पाकिस्तान अपनी मैन पावर को, अपने सिक्योरिटी वसाइल को बढ़ाए। इससे पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हों, पाकिस्तान के वसाइल ज़्यादा से ज़्यादा लगे। हमने आपको पहले भी बताया था, जब बजट अनाउंसमेंट हुई थी तो बलूचिस्तान के अंदर इतने दीगर डिपार्टमेंट के अंदर बजट या वसाइल नहीं रखे गए थे जितने सिक्योरिटी की मद में रखे गए थे। तो यहाँ भी ये बताने का मकसद ये है कि सियाती इलाकों को भी गैर महफूज का तासुर देकर, ताकि यहाँ भी पुलिस और जो फौज या रेंजर्स है ये बड़ी तादाद में आ सके, और यहाँ भी जो वसाइल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। तो इस जंग का दायराकार मज़ीद वसी करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, इसके अंदर जहाँ पर हम ये बात करते हैं पाकिस्तान के हमेशा मौक़िफ़ को सामने रखते हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात का भी जिक्र करते हैं, पाकिस्तान इन मुश्किलात से कैसे डील कर रहा है, हम उससे मुतल्लिक़ की तफ़सीलात आपके सामने रखते हैं। तो वहीं पर हमें कुछ तामीरी तनक़ीद का भी पहलू जो है वो अपने जहन में रखना चाहिए, और उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। देखिए कि ऑपरेशन ग़ज़व-ए हक़ जब हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर किया, तो हमारा ये दावा था कि हमने बड़ी हद तक इन जो तंजीमें हैं मुसल्लह जत्थे, इनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उन्हें बड़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है। लेकिन हाल ही में जो एक रिपोर्ट सामने आई है एक थिंक टैंक की, वो नंबर बड़ा हैरान कर देते हैं। वो नंबर ये खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे एक तफसील के साथ, पूरी नंबर्स के साथ, आदाद शुमार के साथ ये वीडियो हम आपके सामने रखें। लेकिन अभी मुख्तसरन ज़िमरन मैं यहाँ पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2025 के पहले 6 माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों में 2025 के पूरे 12 माह के मुकाबले में 74% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस रुझान को अब सिर्फ गैर रियासती अनासर की एक हिकमत अमली में तब्दीली समझना काफ़ी नहीं होगा। ड्रोन हमलों में मुसलसल इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि इन ग्रोहों की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क बदस्तूर फ़आल है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी सलाहियत ये भी जो है इन तंजीमों की बढ़ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने मुतादिद ऑपरेशन किए हैं, इनकी इंसदाद के लिए हमें बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी मिली हैं। लेकिन ये जो 2026 का नंबर बता रहा है कि 2025 के पूरे साल में इतने ड्रोन हमले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं हुए जितने 2026 के इन आगाज़ वाले महीनों के अंदर हो गए हैं, पहले 6 महीनों के अंदर, यानी कि 74% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अब अपनी हिकमत अमली को तब्दील भी करना होगा, असरनो इसका जायज़ा भी लेना होगा, और देखना होगा कि इन ऐसी तंजीमों की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं टूटती है तब तक इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला नहीं रुक सकता है। तो बहरहाल ये वो ज़ियारत से मुतल्लिक अपडेट है जो आपके सामने रखी है। अब आ जाइए इंतहाई गैर मामूली खबर के ऊपर, जो हमने सबसे पहले, हमें इस बात को ऑन करते हैं कि हमने सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने ये खबर रखी थी कि पाकिस्तान और इंडिया के लो लेवल पर ही सही लेकिन मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उसके 3 से 4 दिन के बाद ये खबर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आती है और श्रीलंका और कोलंबो का जिक्र किया जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के जो वफूद हैं लो लेवल के, इन्होंने यहाँ पर मुज़ाकरात किए हैं। और ये भी मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि सरकारी सतह के ऊपर उस किस्म की अभी तस्लीम शुदा या तस्दीक शुदा ये चीज़ें नहीं है, लेकिन एक बतौर सहाफ़ी मैं मालूमात की बुनियाद के ऊपर आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि ये एक राउंड नहीं हुआ है, बल्कि गुज़श्ता हफ्ते चंद राउंड हुए हैं, और इसके अंदर ईरान ने भी अपना किरदार अदा किया है। वो कैसे मामला क्या हुआ है, ये पूरी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
माजरा ये हुआ है कि पाकिस्तान का ये कहना था कि जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान इस बात के ऊपर राज़ी है कि पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन है वो अगर इंडिया भी इसके अंदर शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा और वही पाइपलाइन पाकिस्तान से होती हुई इंडिया भी जा सके। इंडिया ने इसके ऊपर जो है वो इनकार कर दिया और इंडिया ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी पाकिस्तान की तरफ से हमारी फ़ज़ाई हदूद को बंद किया गया, कल को अगर हमने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान ही के ज़रिए अपने हदूद के अंदर दाखिल करने की कोशिश की तो हमारी कल को पाकिस्तान के साथ कशीदगी होती है तो ये भी एक पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल हो जाएगा और वो हमारी इस सप्लाई चेन के ज़रिए हमें फिर ब्लैकमेल करेगा। इस बात के ऊपर इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान ने बहरहाल ये ऑफर की थी कि हम आपको ये गैस पाइपलाइन देते हैं, आप सिंतास माहदे को बहाल कर दीजिए। भारत ने इसके ऊपर इनकार किया और इसी मामले के ऊपर ईरान भी बीच में आया था और इस मामले को एक हतमी डील की सूरत दी जाए और ये वो वजह है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान की तरफ से भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शहीद अली खामराई के जनाजे की दावत भी दी गई थी ताकि कोशिश की गई थी कि सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बर्फ़ है ये पिघले और किसी न किसी तरह जो मुज़ाकरात है, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो शुरू हो सके। लेकिन इंडिया की तरफ से बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात के कहने के मुताबिक गो के भी सरकारी सतह के ऊपर नहीं है लेकिन अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की वजह से भी भारत इस मामले से पीछे हटता हुआ नजर आया और इस ऑफर को जो है वो ठुकरा दिया गया। फिर एक और ऑफर जो पाकिस्तान की तरफ से रखी गई इंडिया के सामने वो ये थी कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट हम आपके लिए दोबारा से ओपन कर लेते हैं कि जो जंग से पहले आप अफगानिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से तिजारत कर रहे थे, पाकिस्तान के जरिए वाघा बॉर्डर के जरिए आगे तिजारत जा रही थी, आप इसके जरिए जाएँ, आप उसे आगे सेंट्रल एशिया तक भी जा सकते हैं और इसके बदले में आप सिंतास माहदा जो है इसको आप बहाल कीजिए। अब भारत की तरफ से इसके ऊपर भी इनकार कर दिया गया। भारत ने कहा कि ये ऑफर भी बेसूद है क्योंकि हम तो रशिया के साथ, ईरान के साथ मिलकर एक नए रस्तों की तलाश कर रहे हैं जो हमें सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से जो कनेक्ट है वो कर देंगे। अब हमें पाकिस्तान के इस रस्ते की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ठीक है, फिर आपकी जो एयरलाइंस, निजी एयरलाइंस जो पहले ही डूब रही हैं, उनको आप मजीद डुबोने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी जो फ़ज़ाई हदूद है इसको खोलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक मामला इंडस वाटर ट्रीटी का है तो पाकिस्तान का एक रियासती सतह का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सूरत में और वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि पाकिस्तान का अगर पानी रोका गया तो पाकिस्तान हर वो इक़दाम करेगा जिससे पाकिस्तान का पानी महफूज हो सके और पाकिस्तान को पानी ये मिलता रहे। अब कुछ माहिरीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत या नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार इस बात के ऊपर लगी हुई है कि पाकिस्तान को पानी के मामले के ऊपर इस हद तक जिद किया जा सके कि वो अगले इलेक्शन से पहले पहले कुछ ना कुछ पाकिस्तान जो है वो रद्दमल दे और उसी को बयानिया और मौका बनाकर इलेक्शन कैंपेन में जाया जा सके। ये वो सूरत हाल आपको उसी तरफ जाती हुई नजर आती है और हम हमेशा आपको यही कहते हैं कि जंगें किसी भी मामलात का हल नहीं होती हैं, चाहे पाकिस्तान की जंग है, इंडिया की जंग है, चाहे वो किसी और मुल्क की है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं इक़्तिसादी लिहाज से तो इस खत्ते से अमीर खत्ता कोई और हो ही नहीं सकता। इस हद तक कितना पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन मैं एक साइड की बात नहीं करता, मैं दोनों साइड की बात कर लेता हूँ कि अगर हम दोनों जो साइड के जो हुक्मरान हैं, एलीट क्लास है या फैसला साज है, अगर वो ये समझें और अपने रवैयों के अंदर संजीदगी लेकर आए तो हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों जानें बचाई भी जा सकती हैं और टेबल के ऊपर बैठ कर बात भी की जा सकती है, मामलात को हल भी किया जा सकता है और कशीदगी को तिजारत के जरिए जो है वो फ़रोग़ भी दिया जा सकता है जिससे यहाँ के लोगों का और मुल्क के दोनों ममालिक का जो फ़ायदा है वो भी हो सकता है। भारत इंसान चाहे इंडिया के अंदर मरे या पाकिस्तान के अंदर मरे, दोनों इंसानी जानों का ज़िया ही है दोनों सूरतों के अंदर और इसके अंदर तशवीश ही है और मजम्मत ही करनी चाहिए। तो बहरहाल एक आगाज़ हुआ था पाकिस्तान और इंडिया की गुफ्तगू का। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसकी नई डेवलपमेंट्स क्या आती हैं क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा बातचीत जो है वो जारी सारी रहती है, चाहे वो लो लेवल के ऊपर हो चाहे वो हाई लेवल के ऊपर हो। तो ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।